ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. Dear friends, today in our Ramakrishna Kutir Almora, we had special puja, bhajans, etc. as memorial to revered Swami, remembering revered Swami Vagishanji Maharaj. As you all know, recently on the 12th of March 2021, he entered into Mahasamadhi at our Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, Kolkata, and at that time he was 91 years old. Remembering him, today I would like to speak a few words on his life and my personal touch with him. Speaking on his life, he was born in Chittagong on the 12th of January, and in his pre-monastic days he was known as Samaresh. Later he got admitted in our Deoghar Vidyapith, and from there he shifted to Bangabasi College and graduated in the year 1952. As Samaresh, he joined the Holy Ramakrishna Order in the year 1954 at our Sharada Peeth, Belur Math branch. He took Mantra Diksha, that is initiation, from Swami Shankaranji Maharaj, and got into Brahmacharya Diksha with the name of Brahmachari Smriti Chaitanya. Later, in the year 1962, he was ordained into the sacred vows of sannyasa. Staying for a long period in Sharada Peeth of 23 years, from there he moved to our Ranchi Morabadi Center in the year 1976, and till 1982 he was there, and then on his travel went on till in the year 1987 he took up as the center head of our Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Center of Mumbai. I met Maharaj for the first time in the year 1987 at our Mumbai Math when I was travelling to join this holy order at our Rajkot center. So I was en route Rajkot, and there I first met him. Seeing me and knowing my thoughts of joining the organization, since he had taken the charge of Mumbai center, he insisted me quite a few times that why should I not stay back in Mumbai and abandon my trip to Rajkot. But somehow, since it was fixed for Rajkot, I had to travel to Rajkot. My first impression which I got meeting him there at Mumbai was, he's sitting on the chair in the Mumbai Math veranda with an ever smiling countenance, and this was a very familiar sight not only for me but for all those who used to visit Mumbai Math. It was a special trait in him that made everyone feel very comfortable at his presence, and it was his unassuming yet profound personality which made an indelible impression on everyone's mind. He loved every minute in the company of the devotees, which made a deep impact in all, and this led to all the devotees to have his company more and more. Not only this, he had
the power of empowering everyone and gave all the confidence and impetus to do one's best, and lovingly accepted all and gave everyone a chance to perform and deliver the best. It was as if the all embracing spirit of Sri Sri Thakur, Ma and Swamiji was flowing in abundance through him, is what I felt as and when I used to meet him. He used to lovingly call me Gayak Swami, and whenever I used to visit Mumbai Mutt, he used to tell, তুমি আজকে অনেক গান করে ঠাকুরকে খুশি করবে. Most revered Maharaj from Mumbai moved to Kashipur Udyanbati in the year 2010 after spending 24 long years in Mumbai. Moreover, he was so unassuming that it was very difficult to get a proper glimpse of the impact he had on the ashrama. The devotees genuinely loved him, and how he genuinely loved spending time with the devotees, that all have felt the spontaneous outpouring of affection from most revered Maharaj. Needless to say that they have felt many positive changes within their personality as and when they used to interact with him. The obvious impact must have been the Ishta Mantra with which he used to bless all the devotees who used to receive initiation from him and came in contact with him, and to experience at various points of time. More we recollect what he has accomplished, we realize that the Holy Trio was manifesting their grace on us through him. We offer our prayers on this auspicious occasion of today with our puja to Sri Sri Ma, Sri Sri Thakur and Swamiji, so that he, being a conduit of the Holy Trio, can shower his spontaneous love on us, is my prayers. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Shri Ram Krishna Arpanamastu. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षाৎ परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে প্রণাম নিবেদন। আজকে আমরা গুড়গাঁও থেকে এখানে আলমোড়া কুটির রামকৃষ্ণ কুটিরে একত্রিত হয়েছি আমার গুরুদেব রেভারেন্ড স্বামী বাগীশানন্দজি স্মরণ সভার উদ্দেশ্যে। আমরা আমার পরিবারে আমি আমার মেয়ে আমার হাজব্যান্ড তিনজনেই 2014 সালে দিল্লিতে ওনার কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা পাই এবং তারপর থেকেই আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। আমরা ছোট থেকেই ঠাকুর মায়ের স্বামীজির চরণেই ছিলাম, যেহেতু আমার মা বাবাও তাদের শরণার্থী ছিলেন। সেই জন্যে আমাদের এই সঙ্ঘের প্রতি প্রচুর নিষ্ঠা এবং প্রচুর ভালোবাসা, ঠাকুরমা স্বামীজির উপরে খুব একটা ভক্তি এবং বিশ্বাস, এবং এই আদর্শেই আমি থাকতে চাই। তো 2014 সালে দীক্ষা নেওয়ার পর আমার মেয়ে যে ডাক্তার ছিল সেও 2015 সালে গুরুদেবের থেকে দীক্ষিত হয়, কিন্তু হঠাৎ কোনো বিশেষ কারণে সে 2020 সালের 23শে জুলাই নিজের ডেস্টিনেশন বলে দিয়ে ঠিক সেই চরম ধামে চলে গেছেন। সেই কথা আমি আমার গুরুদেবকে জানানো মাত্রই আমার গুরুদেব তৎক্ষণাৎ আমাকে উত্তর দিলেন, উত্তম গতি হয়ে গেল মা, আর চিন্তা করো না তুমি। আমরা গুড়গাঁও থেকে যখনই কাশীপুরে গেছি তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে, সে যে কি নিষ্পাপ হাসি, ছোট শিশুর মতন যেন দুটো চেয়ারের দুটো হাতলে হাত রেখে এমন সুন্দর যেন তবলার আকারে বাজাতেন, মনে হয় যেন সাক্ষাৎ উনি ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছেন আর ওই রকম আনন্দ করছেন। কেবল আমাকে বলতেন, ওমা গুড়গাঁও থেকে এই কাশীপুর যে কলকাতা কত ভাড়া বললো তো, বাবা এত টাকা ভাড়া দিয়ে তুমি এসেছো আমার কাছে? তো আমি বলতাম, হ্যাঁ মহারাজ গুরুদেব, আমি তো আপনার দর্শন করতেই আসি, আমার কাছে ওইটা কোনো মান্য রাখে না। তারপর ওনার জন্য আমি কিছু জিনিস নিয়ে গেলে
খাবার মিষ্টি বা কোনো কিছু নিলে উনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, তুমি জানো তো আমি ডায়াবেটিক, তুমি আমার খাবার কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার আনোনি তো? আমি বলতাম না। একদম ছোট শিশুর মতন ওনার সেবককে বলতেন, দেখো দেখো মা কত দূর থেকে কি সমস্ত এনেছে, সব আলাদা করে রাখো, কাল থেকে সকালবেলা প্রাতরাশেও আমাকে চায়ের সঙ্গে এই সব বিস্কুটগুলো দেবেন, নামকিন যতটুকুনি। সেই কথা আমি কোনো দিন জীবনে ভুলতে পারবো না, যে আমি এত বড় একটা ধাক্কা আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু আজকে আমার গুরুদেব এই ঠাকুরমা স্বামীজি না থাকলে আজকে আমি জীবনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। এটা আমি আর কোনো গর্বের সাথে বলতে পারি যে তারাই আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু, এবং যত জীবন আমার প্রাণ থাকবে আমি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই রাস্তায় চলতে চাই। সবাইকে আমার প্রণাম, সশ্রদ্ধ নিবেদন, সমস্ত সাধুদের। হরি ওম তৎসৎ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग मातृ सुलभ पूजनीय स्वामी बागीशानंद जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन स्मृति सभाएं सकल के संबोधन करने के लिए मेरा सुयोग मिला है। महाराज हमारे सकल के माँ जैसे ही थे, सबके इसे प्यार से रखे हुए थे। उनका जन्म स्वामी विवेकानंद जन्मदिन 12 जनवरी और देहांत भी 12 मार्च हुआ। महाराज के पुण्य दर्शन हमको सबसे प्रथम 1976 बेलूर मठ में हुए। महाराज को प्रणाम करके पूछे, महाराज आप रांची आश्रम के इंचार्ज थे, वहाँ के चार्ज हैंडओवर करके आप बेलूर आए हैं, आपका ये हमारा पहला दर्शन। उन्होंने पीठ में हाथ रख करके हमको प्यार किया और बोले, हाँ भाई अभी मैं मालदा आश्रम में जा रहा हूँ, वहाँ का कार्यभार संभालना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद महाराज मालदा से काशीपुर आश्रम में आए, वहाँ का इंचार्ज बने। उसके बाद कमारपुकुर आश्रम में गए, वहाँ का इंचार्ज बने। कमारपुकुर से जल्दी ही उनको लिया गया बॉम्बे। 1986 2 अप्रैल पूजनीय महाराज बॉम्बे आश्रम पहुँचे। तब उस समय हम बॉम्बे आश्रम में ही सेवारत थे। 1989 नवंबर में मेरा बदली हो गया राजकोट। महाराज की इच्छा थी हमको दोबारा बॉम्बे में बुलाए। बेलूर मठ को रिक्वेस्ट किया और 2002 अक्टूबर में दोबारा महाराज के पास हम पहुंच गए और 2005 मार्च तक उनके साथ सेवा करने के लिए मौका मिला। इस समय हम देखते थे महाराज रोज दोपहर को 3 बजे बरामदा में बैठते थे, कौन आ रहे जा रहे, लेकिन मन कहाँ कोई उदास रहते थे। एक दिन हम लोग लक्ष्य किया, महाराज 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ क्यों बैठे रहते, ऑफिस में भी बैठ सकते, रूम में भी। एक दिन नज़दीक से जा रहा था, देखा अंगुली में अपना हाथ में जप चल रहे, कर जप ऐसे थे महाराज का, हमेशा जप चालू ही रहता था। रूम में भी जब भी हम जाते थे कुछ काम से या कुछ पढ़ते थे, नहीं तो चुपचाप ठाकुर के फोटो की तरफ मुँह करके बैठे थे, यानी जप ध्यान चालू रहता था। देखने से मालूम नहीं पड़ता था महाराज इतना कर्मवीर है, काम एंड क्वाइट, शांत स्वरूप। काम करने का जो कैपेसिटी रांची का मोराबादी जाने से मालूम पड़ेगा जो कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके जब राजकोट में मेरा बदली हो गया, महाराज हमको बोले, देखो माँ शारदा देवी के 150तम जन्म वार्षिकी चल रहे, उसका मेन फंक्शन में आपको आना पड़ेगा एवं
प्रोग्राम में आपको रहना पड़ेगा। महाराज को प्रणाम करते बोले महाराज आपके जो आज्ञा होगी हम जरूर आएंगे। राजकोट चले गया। एक डेढ़ महीने के बाद ही आकर के 7 दिन रहा। महाराज बहुत खुशी, देखा इतना बड़ा फंक्शन, माँ के 150th एनिवर्सरी, कितना सुंदर रूप से बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया, बड़े बड़े लेक्चरों को बुलाया, बहुत से स्वामी जी लोग को बुलाया। महाराज जब 86 में बॉम्बे आश्रम का चार्ज लिया, उस समय ठाकुर के 150तम जन्मवार्षिकी और रामकृष्ण मठ मिशन की अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की 100 ईयर्स पूरा हुए थे। महाराज 42 डेज का प्रोग्राम किया बॉम्बे आश्रम में और बॉम्बे शहर में बहुत सी जगह में, नाना प्रकार कल्चरल प्रोग्राम, म्यूजिक, ड्रामा, लेक्चर्स, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअसली 42 डेज चला। देखा महाराज का कर्म क्षमता, चुपचाप बैठे रहते थे, सब लोग काम करते थे। जहाँ पर उनको बोलना था धीरे से शांति से बोलते थे, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, और आज देर हो गया, कल से 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ टाइम से। देखा महाराज का टाइमिंग, इस प्रकार थे महाराज, और उनका जो प्रेम ये हम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। जब हम राजकोट का इंचार्ज बन के गए, महाराज को बोले, महाराज जब स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ 2008 में, महाराज को बोले आपका इसका अध्यक्ष बनना पड़ेगा। वो बोले नहीं, अध्यक्ष तुम रहोगे, मैं उपाध्यक्ष रहेंगे। मैं बोला आप ट्रस्टी है बेलूर मठ के और आप हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बोले यही नियम है, लेकिन सब मीटिंग में हम आ नहीं पाएंगे, साल में 1 या 2 मीटिंग में आएंगे। हमने देखा महाराज ठीक समय पर पहले से जिज्ञासा टाइम पूछ करके हम डेट फाइनल करते थे, आते थे, मीटिंग बोलते थे। बहुत से समय प्रोग्राम में उनको प्रवचन के लिए बुलाते थे। शुरू में हम नीचे बैठते थे, बैठने की कोशिश करते थे। वो बोले डाइस रोड के जब तक तुम ऊपर हमारे बगल में नहीं बैठोगे हम प्रवचन शुरू नहीं करेंगे। इस प्रकार बगल में बैठे थे, समान मर्यादा देते थे। एक बार हम लोग का रिट्रीट था, महाराज को हमने रिक्वेस्ट किया, महाराज ध्यान के बारे में आपको बोलना पड़ेगा और सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। हम आश्चर्य हो गया, महाराज आसन करके बैठे हैं और 45 मिनट्स ध्यान कैसे करना है और क्या करना है, एक के बाद एक क्रम लेकर के 45 मिनट्स पढ़े। पिन पूरा करीब 300 लोग बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंट। और हम लोग यही सोचते थे कि हम लोग इस जगत में नहीं है, हम लोग दूसरा कोई स्वर्ग में या कहीं पर पहुंच गया जहाँ पर सब शुद्ध वातावरण है। ये थे महाराज। दूसरा मेरा जब बदली हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले जब भी हम कलकत्ता जाते थे, महाराज काशीपुर में थे, उनका कहना था तुम यहीं आके रहोगे। मैं बेलूर मठ रहने के बाद 1 या 2 दिन काशीपुर में जाके रहते और रात को भोजन के समय महाराज हमारे बगल में बैठते थे। एक एक आइटम हमको दिया कहने देखते थे। जब मेरा बांग्लादेश में बदली हुआ तो बोला तुम यहीं से जाओगे, बेलूर मठ से ठाकुर प्रणाम करके यहाँ आओगे, हम तुमको एयरपोर्ट पहुँचाएंगे। आकर के रात को जात प्रकार के खाना भोजन बनाया और हमको खिलाया एक एक करके। उनका खाना हो गया था, रात को केवल सूप लेते थे और कुछ नहीं लेते, पूरा हम थोड़ा स्लोली धीरे धीरे खाते थे। वो आधा घंटा 45 मिनट बगल में बैठे रहते थे। बहुत बार हमने बोला महाराज आप जाइए विश्राम करिए, बोले नहीं तुम्हारा खाना होने दो, पूरा बैठे। सुबह हमारे साथ एयरपोर्ट चले, मैं उनको प्रणाम करके रिक्वेस्ट किया, महाराज आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप रहिए, हम पहुंच जाएंगे, ये लोग कोई आएंगे, बोले नहीं हम ही आएंगे। एयरपोर्ट गया, 2 घंटा जब तक सिक्योरिटी कॉल नहीं हुआ तब तक महाराज बैठे रहे। जब मैं रिक्वेस्ट किया महाराज अभी सब कुछ हो गया, आप मठ में चला जाइए, हम चले जाएंगे, बोले नहीं तुम कॉफ़ी ले आओ, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। बैठे बैठे कॉफ़ी पिया। करीब 2 घंटा बैठने के बाद सिक्योरिटी कॉल हुआ, हम अंदर गया, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में भी जब भी हम बांग्लादेश से आए, काशीपुर में थे,
हमको बोलते थे यहीं से जाओगे, हम आपको छोड़ने आएंगे। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, महाराज हमको एयरपोर्ट छोड़ने आते थे। ये था उनका प्रेम, हमारे प्रति जो प्रेम भालोबासा, ये हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे अपना माँ बच्चों के साथ, जब कोई बच्चा दूर जाते हैं, जब तक दिखाई पड़ते हैं तब तक माँ खड़े रहते। माँ शारदा देवी के जीवन में हम लोग यही देखते हैं। कोई भक्त तो आते थे, जब दूर चले जाते थे, छोड़ के जाते थे, माँ वहाँ का तालाब के किनारे पर जाके के देखते थे, जब तक देखा जाए, दर्शन मिले उनका, माँ वहीं खड़े रहते थे। इस प्रकार उनका मातृ सुलभ नेचर, जैसे हम सिक्योरिटी में जा रहे, पीछे मोड़ के देखा, महाराज खड़े हुए, मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, उन्हें हाथ से हमको टाटा किया करके वापस गया। ये जो प्रेम, ये जगत में अभी किसी से मिले क्या नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन उनसे हमको मिला। कितना साल तक हम उनके 1986 से 2020, जब हम अल्मोड़ा आश्रम का अध्यक्ष बन के आए, महाराज के प्रणाम करके गया। बोले जाओ 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 हिमालय हिमालय हिमालयन स्वामी। इसके बाद जब भी बेलूर मठ मिलते थे, महाराज बोलते थे हिमालयन स्वामी जी आ गया, हिमालयन स्वामी जी आ गया। इनका जो बालक सुलभ नेचर, ये अद्वितीय है, देखने को नहीं मिलता। आज महाराज हमारे बीच में नहीं है। गुरु जैसे बोलते इष्ट वो इष्ट, ये तुम्हारे गुरु, और दोनों इष्ट और गुरु एक हो जाते हैं। हमारे विश्वास है महाराज आज ठाकुर के साथ मिल करके एक हो गया, और हमारे सबके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बरसते रहेगी। यही हमारा उनका चरण कमल में हमारे प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।